Hi, good morning, everyone, and thanks for joining us on a holiday, and that to morning 11 a.m. We appreciate your participation. We thought with the amount of uncertainty across the globe and every day being filled with so much of news, it is the best time to address some of the questions which you might have. And because of that, I am joined by our head of research, Mrs. Padmavati Udecha also, and we will try to answer most of your questions. We are both comfortable with multiple languages. We will try to make this conversation more interactive. We will use both English and Hindi for better conversation. So over to you, Padma. I would request you to start, and then I will take over from you. Sure. Thanks, Sandeep. And thank you everyone once again for joining on a holiday. As Sandeep she mentioned that right now, there's a lot of volatility that is going on across the globe. Trump, after resuming office in his second term, he has again imposed tariffs, and this tariff tantrums are causing a lot of volatility in the markets. Now, before I go to discuss, what has really happened in the markets, what is evolving on the tariff front, I would just like to, first take you through the basic philosophy of Sovilo. Because, see, when we have a huge skyscraper that is being built, the strength of the skyscraper depends completely on how strong the foundation is. So that is why if we have a solid foundation here at Sovilo, only then, can we actually navigate through these volatile times, uncertain times with great degree of comfort. So can we go to the next slide, please? Yeah. So this is our basic philosophy, or what I call as, a solid foundation for our investment journey. So we focus on 5 key pillars. We want to invest in businesses, which are scalable. And it doesn't matter if today, they are at a nascent stage, they're yet to, grow big. We actually want to identify companies which are going to be 100 baggers in the near future. But at the same time, we also focus on these businesses that, that are scalable with adequate profitability or with the potential to generate adequate returns for investors. We want to invest in companies which are also leveraging technology. In today's world, in the 21st century, we just cannot rely on, the age old means. We have to be focused. We have to, use technology, leverage technology to our benefit. And even after having all these factors, we want to have confidence in the leadership of the company. Sometimes, businesses, they have all these 3 factors, but due to some changes in management, they don't have a clear captain for the ship. And as a result, we are seeing that, some businesses, they just collapse because they didn't have an active captain or an active leadership who can, mobilize all these resources and deliver the optimum return. So that's on leadership. And last but not the least, on governance. We focus on companies which are strong, which have strong governance, good corporate governance, no, history of scams or, like various accounting and etc. deviances. So this is a solid foundation on which, we are building this organization, and, we are embarking on this investment journey. And we are very thankful for all of you to, join us here. Oh, yeah. Next slide, please. Yeah. So this is just, some of the key achievements in like less than a year of operations. We have got these accolades. So PMS AIF World, we have been ranked twice. So once in April of 24, also we were, we featured in the top 10 portfolios. And again in Jan 25, we had featured in it. So, this is a testament to our investment philosophy and, the pedigree that we bring over here. Now, moving on to the next part, that what is really happening with the markets. There are, I'm sure, a lot of questions. Markets are making, like, market movements are actually making headlines even in other news. Like, typically people who don't track markets on a day-to-day basis, they're also coming and asking, oh, what's happening? So right now we are in, like, if you see CY 2025, like ever since this calendar year has begun, there has been a downward pressure in the market. So, whether it's the Indian indices or global indices, broad based, there is selling pressure with increased amount of volatility. Yeah, next slide, please. If I talk about the sectors which have the highest global influence, like for example, IT, then some of the capital good names, metals, etc. These are sectors which have, taken beating.
And broadly, the domestic sectors like, consumption, BFSI, these are the sectors which have relatively been less affected. We'll come to this, later during the presentation, that how, we are positioning our portfolio in line with these evolving dynamics. But in short, there is broad-based sell down across markets, across segments, whether it's the mid caps or the large caps or the small caps, or even global markets. So we can come to the next slide. Right? So this is the thing. Now, obviously on this chart, it shows that, Nifty at a headline level, Indian markets are down only 3% in CY25, but we need to also remember that Indian markets had discounted a lot of this ever since October of 24. So, we were the initial ones to start falling. So then overall, if you look at it, Indian markets have broadly, they're falling or they're moving in line with the global markets. And this whole uncertainty with, tariff tantrums, a bit of earnings slowdown in the domestic space. So this has all been weighing on the markets so far. Yeah, next slide, please. So, for those who don't really track Trump's trade policies very much in detail, I just want to, spend a minute or two to exactly outline what is happening. See, we need to recollect that when Mr. Trump, he took charge of the office in his first term, which was in 2018. He started, or he embarked on a bilateral trade war, wherein the sole focus was China. US wanted to reduce its trade deficit with China, which is, amongst one of the largest trade deficits that US runs today. And it started levying tariffs, it, started doing various things. And then, so if you see the slide, there are various measures that were announced, have been listed here. But then in 2020, when actually COVID came, some of these measures had to be, okay, like the government had to go a bit easy, because during COVID, with, complete lockdown, the focus of policymakers, both fiscal and monetary, was on supporting the economy and, preventing a full-fledged depression, something similar to what had happened in the 1930s. So, there was this synchronous easing by both fiscal and monetary authorities across the globe. Now, what happens is, and then we know that, how the Biden administration came in. Now, the Biden administration was, again, they were go easy people on tariffs. They continued some of the Trump's policies, but it was not so aggressive. And in the meantime, what happened, that even though there were some, there were higher tariffs on China, and, there were a lot of restrictions on imports from China, but China actually was able to, navigate through this whole thing by, using other countries to ship its products to the US. Like, it was sending some things to, let's say, Vietnam, etc., Mexico, Canada, and then, things landed up in US. So there was this one study that was conducted by World Bank, wherein they showed that ever since Mr. Trump took charge, if you look at the percentage of products coming from China, that is originating from China into the US, that has actually gone up in the last 10 years. So, so these tariff measures were definitely not effective. Now, as a result, what happened when Mr. Trump resumed office again during his second term, now he shifted from a bilateral trade war to a multilateral trade war, wherein it is not China anymore. It's not just China anymore. He wants to target all the countries, like, whether it's Mexico, Canada. So he wants to plug the gaps. Like, he doesn't want China to use other countries to, dump its products in the US markets. And also it wants to, reduce its trade deficit with other countries as well. So that is, if you look at the later part of the timeline, these are the various measures. Now, obviously, if you look at the details of the measures, on April 2nd, Liberation Day speech, Trump came and, he levied rates across, like reciprocal tariffs across various countries. And, but then, later on, he has given a 90 days exemption window, and, he's saying that, okay, we are going to enter into trade deal negotiations. So, there's this whole effort that in 90 days, different countries, whatever they can, they can actually negotiate with Mr. Trump and get a trade deal, and thereby, offset the impact of tariffs per se. So this is in gist, or in short, the entire summary of Trump's tariff tantrums. Yeah, let's move to the next slide, please. Now, what is really happening because of these tariff tantrums? Like, why are markets really falling? Because ultimately, there is like, okay, import duties always existed. Now, okay, it has caused, it has really catched headlines, and, people
are getting spooked. But why is it really spooking markets? So we need to understand two things. One, what happens is that, with so much of uncertainty, like if you see this left-hand side chart, there's a big spike that we have seen in global world uncertainty index. Now, what happens is that when you have so much uncertainty, decision making actually stalls in the boardroom. So, like for example, early in January 2025, one of the management of one of the leading chemical companies who exports to US, Europe, etc., they said that virtually we are not getting any more discussions or any more orders from our customers, because they want to wait and they want to get clarity on what the tariffs really will be across different jurisdictions. It's just like similar to tax, right? Corporations, MNCs, they prefer jurisdictions where they have to pay less taxes, and if it's feasible, they like to have their operations over there. Now, similarly with tariffs, once the clarity emerges, then they will actually want to reject the supply chain. Now, this is easier said than done, because in a globalized world, there are a lot of nuances. But in short, as long as we don't have clarity on what exactly will be the tariff rate on different countries, which products will be exempted, which products will fall under the tariff net, decision making has kind of stalled, and that is causing this whole jitters in world markets. And also there is increased risk of recession in the US because of this whole tantrums of Mr. Trump. Yeah, next. So if you look at markets across the globe, they have actually corrected. And if you see these tables, like, forward valuations for all countries except India, it has fallen below the 10-year average. Now, the reason why India still trades at, at a premium to its long-term average is because India is the only country in the world which is the fastest growing economy. Right, we are the only country in the world who is going to grow, who is projected to grow at 6% plus GDP growth rate for the next 2 years at least, and even beyond. But like right now, because we're focused on the near term. So for both 2025 and 2026, India is the only country which can grow at about 6% plus. So India stands at a relative advantage, and we will discuss this in much detail in the later part of the PPT. But therefore, we just want to highlight that often this argument is made that, India is trading at expensive valuations. But if you look at these valuations relative to the growth potential, that India is not, this valuation premium to long-term average only represents the confidence that the international investor community has on Indian market or Indian economy. Yeah, please move to the next slide. Yeah. Sandeep, yeah. So hi everyone. Thanks Padma for the detailed 10 slides. I will use both Hindi and English, and if someone has a problem in understanding Hindi, please put it in chat. Then we will again repeat that in English. No problem at all. तो पद्मा ने बहुत अच्छे से आपको ब्रीफ किया क्या हो रहा है, बट मैं थोड़ा आपको इसका जेनेसिस बताना चाहता हूँ, सो दैट आपको समझ में आए. आई थिंक जो हमारा टर्निंग पॉइंट हुआ है दैट वाज कोविड. तो कोविड में ऐसा हुआ कि कोविड जब हुआ तो लोगों की वर्ल्ड की सप्लाई चेन रुक गई, एंड तब लोगों को पता चला कि हम एक चाइना जैसी कंट्री पे अपना पूरा सप्लाई चेन, अपना पूरा मटेरियल का डिपेंडेंसी नहीं रख सकते हैं. हमारी कंट्री को अगर चलना है तो वी शुड हैव सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन. आज अगर आप सब, बहुत सारे लोग आप में से बिजनेसमैन होंगे, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द बिजनेस फॉलो द प्रोसेस की 3 बिड मिनिमम आनी चाहिए टेंडर में, या 3 कोटेशन आने चाहिए. तो वर्ल्ड ने एक ही कोटेशन रखा था, चाइना. सब कुछ वहीं से आता था, एंड दैट वाज एक तरह से वो रिस्क भी था जो सबने लिया. और कोविड में सबके रिस्क सबने देखे हैं क्या हुआ. किसी को मास्क टाइम पे नहीं मिला, किसी को कुछ प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिले, किसी को कुछ प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिले, एंड देयर वाज ह्यूज. फॉर एग्जांपल, अगर आप इटली का डेटा देखें, कोविड में सब बहुत डेथ हुई है, बिकॉज वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 90 प्लस की बहुत सारी थी, और उनको टाइम पे सेफगार्ड इंस्ट्रूमेंट, सेफगार्ड मेडिसिन कुछ नहीं मिल पाए थे, बिकॉज अगेन देयर सप्लाई चेन वाज आल्सो डिपेंडेंट ऑन दैट. बाद में एक बड़ा मेस फ्रेट में क्रिएट हुआ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द शिप्स वर्ल्ड की चाइना कंट्रोल करती है. तो दुनिया को पता चल गया था कि हम लोग के पास एक कंट्री नहीं हो सकती जहाँ पे हम अपना माल ले सकते हैं, अपनी कंट्री को डिपेंड कर सकते हैं. नाउ अब क्या हुआ है कि उसके बाद अगर आप देखेंगे 2020 के बाद जब ऐसा सब कुछ हुआ, जब मार्केट न्यू 12,000 का निफ्टी 7,000 पे आया, स्टॉक्स 50% करेक्ट हो गए, अच्छी कंपनियां करेक्ट हो गई एंड ऑल. उसके बाद हमने सडनली देखा कि मार्केट में रिकवरी आना चालू हुआ, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि भाई दुनिया खत्म नहीं हुई है, ये एक पेंडेमिक है. एंड
वैक्सीन आने का जैसे जैसे न्यूज आती गई वैसे वैसे मार्केट चलते गए। इनिशियली वो 7,000 का निफ्टी 13,000 12,000 बहुत जल्दी हुआ, एंड बाद में हमने जो 2-3 साल देखे हैं उसमें हमने देखे मिड कैप एंड स्मॉल कैप बहुत जोर से भागे हैं। अगर आप इसका एक रीजन देखेंगे मिड कैप एंड स्मॉल कैप जोर से भागने का और ये इंडेक्स न्यू हाई बनाने का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि इन कंपनियों ने जो प्रॉफिट मार्जिन जिंदगी में नहीं देखे हैं वो इन्होंने कोविड के बाद देखे हैं। और उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि इन लोगों ने, पहले क्या होता था, चाइना से दुनिया भर का माल आता था डायरेक्टली। फिर कोविड के बाद जब दुनिया ने प्रतिबंध लगाना चालू किया और गवर्नमेंट को भी रियलाइज हो, तो गवर्नमेंट ने थोड़ा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए सेफगार्ड ड्यूटीज चाइना के प्रोडक्ट्स पे जो इंडिया में बन सकता है उनमें लगाना चालू किया। उसमें से कुछ कुछ विड्रॉ भी करनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल टॉय इंडस्ट्री में उन्होंने 70% ड्यूटी लगाया, बाद में पता चला इंडिया में तो टॉय बनता ही नहीं है, तो उनको 20% पे लाना पड़ा। तो कहीं कहीं मतलब, एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सही है कि गलत है, लेकिन उससे भी बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ वो ये हुआ कि जितने भी मिड कैप और स्मॉल कैप थे, जो कंपनियां थी जो कभी एक्सपोर्ट नहीं कर पाती थी क्योंकि चाइना डंप करता था वर्ल्ड मार्केट को, वो इतना एक्सपोर्ट किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों का एक डिवीजन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी है, तो हम रोज बहुत सारी कॉर्पोरेट्स को मिलते हैं, छोटी छोटी कंपनीज को मिलते हैं, एंड हमने देखा है कि बहुत सारी अभी एक्सपोर्ट के नंबर सबके बहुत इंप्रूव हुए हैं 3-4 साल में। जीरो एक्सपोर्ट से 20, 25, 30, 40% एंड एक्सपोर्ट में मार्जिन अच्छा बनता है। तो ये जो 2 साल सब कंपनियों के मार्जिन, और हमारे पास सारा डेटा है, हम सारे दिन रिसर्च ही करते हैं, हम आपसे शेयर भी कर लेंगे। आप देखेंगे मार्जिन 10 गुना 8 गुना हो गया। मतलब कोई अगर ये 1% मार्जिन पे था, वो 8%, 10%, 12% मार्जिन में पहुंच गया। मार्जिन आता है तो आपका कैश फ्लो जनरेट होता है, वर्किंग कैपिटल जनरेट होता है, और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट का लिवरेज कम होता है। हाँ, उसके कारण ये सारे जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स है इतने चले हैं और जोर जोर से चले हैं। मतलब 25 गुना हो गए, 50 गुना हो गए, 30 गुना हो गए। पिछले 1 साल में तो ऐसा हुआ कि कुछ हद तक हमको ऐसा भी लगने लगा कि अब थोड़ा यूफोरिया हो गया, और स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स में हुआ भी है। एंड सितंबर में, जब सितंबर आते आते ऐसा हुआ कि जो हमारा जून में इलेक्शन था, इलेक्शन के बाद कुछ माहौल ऐसा बना कि गवर्नमेंट इलेक्शन के कारण, हमेशा ऐसा होता है कि थोड़ा गवर्नमेंट का फोकस ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट से हट के थोड़ा इलेक्शंस पे आ जाता है। टेंडर्स वेंडर्स गवर्नमेंट के रुक जाते हैं, और ये पूरा साइकिल है। तो अगर गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी तो जो प्राइवेट वाला है वो गवर्नमेंट का काम कर रहा है, 40% 60% वो प्राइवेट को माल बेच रहा है, तो प्राइवेट को भी नहीं बेच पाता, बिकॉज अब उसका वर्किंग कैपिटल स्टक हो जाता है। तो हमने जून के बाद मैसिव स्लो डाउन देखा। गवर्नमेंट ने कैपेक्स, प्राइवेट कैपेक्स तो पहले से वीक था, गवर्नमेंट ने पैसा देना कम कर दिया, गवर्नमेंट कैपेक्स कम हो गया, डिफेंस, रेलवे, सब में। एंड उसके कारण हमने सितंबर में आते आते हमने देखा कि अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल चालू हो गई है। प्लस उस टाइम ये था कि चाइना बहुत सस्ता हो गया था, और लोगों को लग रहा था कि अब तो मतलब इंडिया में पैसा क्यों रखना चाहिए, चाइना में पैसा जाना चाहिए। डॉलर स्ट्रांग हो रही थी, जो सारे इमर्जिंग मार्केट के लिए प्रॉब्लम होता है। तो एक ट्रेड था जहां चाइना इन्वेस्ट इन चाइना एंड विड्रॉ फ्रॉम इंडिया, ये ट्रेड बहुत जोर से चला, और इसलिए हमारा मार्केट सबसे पहले करेक्ट होना चालू हुआ। सितंबर से हम करेक्ट हुए, और जनवरी आते आते हमारा 20-25% मार्केट स्मॉल एंड मिड कैप 20-25%, निफ्टी 12 से 15% करेक्ट हो गया था। ट्रंप आने के बाद ऐसा था, लोगों का मानना कि पॉलिटिशियन है, 1-2 दिन 4 दिन कुछ करेगा, उसके बाद करेगा नहीं करेगा, वी डोंट नो। पर अगर आप अमेरिका का प्रॉब्लम देखें तो 2 प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, जितना मुझे इकोनॉमिक्स समझता है। पहला प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन अगर ये चाहते हैं कि वो खुद का प्रोडक्शन करें, खुद की मैन्युफैक्चरिंग करें, तो बहुत डिफिकल्ट है। फिर आपको डार्क फैक्ट्री, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड कांसेप्ट ऑफ डार्क फैक्ट्री। डार्क फैक्ट्री मतलब पूरा ऑटोमेटिक रोबोटिक फैक्ट्रीज, या वो करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की लोग जो हैं वो दिन में एक तो मतलब कितने घंटे काम करेंगे वीक में, वो उसमें उन लोगों का कंफर्ट बहुत कम है। प्लस उनका जो एक्सपेक्टेड सैलरीज है, वेजेस है, वो इतना महंगा है कि अगर आप फैक्ट्री अमेरिका में लगा भी दोगे, तो आज जो अमेरिका जिस प्राइस पे सामान खरीद रहा है चाइना से, उससे 3-4 गुना कॉस्ट हो जाएगा। मेरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, अभी हम पता कर रहे थे कोई ट्रिप के लिए, तो पर डे का जो हमको यूरोप में कोट आया ड्राइवर का, वो 1,000 यूरो प्लस फूड एंड एकोमोडेशन फॉर 8 आवर्स ड्राइविंग का आया है। तो मतलब अगर 1,000 यूरो प्लस खाना पीना भी देना पड़े सिर्फ 8 घंटे ड्राइविंग के लिए, तो हाउ विल एनीवन बी एबल टू अफोर्ड टू प्रोड्यूस इन दोस ज्योग्राफीज? तो मुझे लगता है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। पर जो दूसरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन यूएस करना चाह रहा है, यूएस सिंपली ये चाह रहा है कि जो चाइना को 2002 से 2014-15 तक वन वे उनको मिला, 17% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ सीएजीआर करके, उन्होंने जो यूएस के साथ उनका 4 टाइम का गैप था इकोनॉमी साइज में, 4 से 5 टाइम का, वो गैप उन्होंने रिड्यूस करके और 30-40% पे ला दिया है, 50% पे ला दिया। दैट दे आर वेरी वरीड, क्योंकि चाइना जो पैसा जनरेट कर रहा है उससे वो अपना डिफेंस सिस्टम बिल्ड कर रहा है,
शिपिंग बिल्ड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, अफ्रीका में एसेट्स खरीद रहा है, सब जगह एसेट्स खरीद रहा है, तो दे आर ट्राइंग टू बिकम वर्ल्ड लीडर। एंड अमेरिका डजंट वांट कि कोई इस तरह से पावर को छीन ले। एंड बिकॉज दूसरा जो इनका अटेम्प्ट था, जो आई थिंक इवन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव आज जो थोड़ा बहुत हमको यूएस से प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हमने भी एक तरह से इस चीज को प्रमोट किया था कि देयर शुड बी अदर करेंसी देन डॉलर। यूएस में एक मान्यता है कि हम अपने कंट्री के 2-4 स्टेट छोड़ देंगे, लेकिन हम डॉलर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि डॉलर सब कुछ डिफाइन करता है। आज उनका 36 ट्रिलियन का डेट है, अगर डॉलर ही छूट जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, दे विल गो बैंकरप्ट। तो वो डॉलर नहीं छोड़ेंगे। तो उनको ये डर है कि चाइना बार बार अपनी करेंसी को वर्ल्ड करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज अनदर बिग प्रॉब्लम विच दे हैव। तो अभी उनको चाइना का जो जो फॉरेक्स जनरेट करती है, जो एडिशनल फॉरेक्स जनरेट करके वो यूएस की ट्रेजरी लेके बैठा है, उस प्रोसेस को स्लो डाउन करना है। लास्ट टाइम ट्रम्प जब आए थे तो पद्मा ने ऑलरेडी बताया, उसने चाइना पे कुछ एक्शंस लिए थे, बट चाइना ने क्या किया, वियतनाम, इन वर्ल्ड की सारी कंट्रीज के थ्रू माल डंप करना चल गया। उसमें प्राइमरली कनाडा, मेक्सिको था। इस बार उसने इसलिए मल्टीलैटरल टैरिफ कर दिया, पूरे वर्ल्ड में लगा दिया। कहीं से भी आओ, छोटे छोटे आइलैंड्स को भी नहीं छोड़ा। उसमें मीम्स भी आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे, कीवीज चल रही है प्लेन से उतर के ट्रम्प से टैरिफ नेगोशिएट करने, वो सब बनाया हुआ है। तो आई थिंक इस बार उसने कोशिश की है कि चाइना का जो सरप्लस है ना, वो जेन्युइनली एड्रेस हो। एंड आई थिंक इट इज फेयर फ्रॉम अ कंट्रीज पर्सपेक्टिव, बिकॉज अगर इस तरह से ट्रेड डेफिसिट एक कंट्री के साथ आपका रहते जाएगा, तो बेसिकली वो कंट्री आपकी इंडस्ट्रीज को तो खत्म कर चुकी है, पर आपके लोगों को आलसी बना चुकी है, उनका एफिशिएंसी कम कर चुकी है, और अभी आपसे वो आपका पैसा लेके आपके अगेंस्ट में ही वर्ल्ड में एसेट्स खरीद रही है, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस ले रही है, और हथियार भी बना रही है, which I don't think people will like, and it should not be done. So this should have stopped in first term of Trump, but it could not happen because Chinese were very smart. And this time also, I'm not saying they will not be able to find a way, but it will be tough because they are under massive scrutiny. तो अब जो पीपीटी की स्लाइड्स तो हम करेंगे 5 मिनट बाद, लेकिन जो मैं फाइनल पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोविड के बाद आपने जो मार्केट का मूव देखा, 7,000 का निफ्टी 20,000, 22,000, 23,000, 24,000 गया, और जो मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स जिस तरह से चले हैं, विच हैव मैसिवली आउटपरफॉर्म द निफ्टी आल्सो, ये मुझे लगता है, एंड एट द कॉस्ट ऑफ गोइंग रॉन्ग, एंड आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग एंड आई कैन ऑल्सो गो रॉन्ग, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अभी दुनिया किस तरह से देख रही है मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कोविड से 10 टाइम्स बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ये आया है। एंड मेरा पर्सनल बिलीफ है कि इस तरह से मार्केट चलेगा, इस तरह से इकोनॉमी चलेगी, मार्केट तो उसका डेरिवेटिव है कि आपने कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा, किसी ने भी यहाँ पे ऐसा मार्केट मूव नहीं देखा होगा जो मुझे लग रहा है अगले 2 साल में हम देखेंगे, 2-3 साल में, अगर हमारे और कोई खतरा ना है, समझिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, कोई किसी के साथ बॉर्डर पे कोई झगड़ा ना हो, कुछ ना हो, अगर चीजें स्टेबल रही पॉलिटिक्स साइड से एंड वार साइड से, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको किस तरह से देखता हूँ। अभी आप दुनिया में देखिए, कहीं भी आप अगर चाइना के साथ compete करना, भी चाइना का भी लेबर कॉस्ट बाय द वे अपने से 1.5 से 2 गुना हो गया है, तो चाइना भी मशीन के कारण हमसे आगे है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, बट और कैपिटल के कारण, क्योंकि उनका पावर गवर्नमेंट देता है, उनका कैपिटल गवर्नमेंट देता है, सब्सिडाइज करता है, बट उनका लेबर हमसे पक्का महंगा है, मुझे पता है, हमारे पास रोज के रेट्स आते हैं। तो अगर सबसे सस्ता प्रोड्यूसिंग पावर किसी के पास वर्ल्ड में है तो हमारे पास है। तो हर कंट्री को अगर बनाना है माल तो इंडिया में ही बनाना पड़ेगा। और कोविड में तो क्या था कि आपका खुद का असेसमेंट था कि मेरे को दूसरा सप्लाई चेन बिल्ड करना है, मेरे को दूसरा वेंडर भी चाहिए, चाइना कैन नॉट बी माई ओनली वेंडर। अब जब आप खुद रियलाइज करते हो तो क्या होता है, जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम आता है तो हम उस पर इमीडिएटली लग जाते हैं सॉल्व करने के लिए, बाद में जैसे जैसे प्रॉब्लम वैक्सीन आई, जैसे जैसे कंसर्न खत्म होते गए, लोग फिर से पुराने रास्ते पे आ गए, इसलिए चाइना का एक्सपोर्ट्स में नंबर में कोई फॉल नहीं हुआ। पर मुझे इस बार लग रहा है कि इस बार जो ये अटैक हुआ है, इसने बहुत लोगों की आंखें खोली है, और ट्रंप ने ये, लोगों को कुछ भी लगे, लोग ट्रंप को कुछ भी समझे, एंड ऑब्वियसली ही इज अ बिजनेसमैन, ही हैज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड ऑल, आई रेस्पेक्ट दैट, बट मुझे लगता है ट्रंप ने दुनिया की आंखें खोल दी कि चाइना आपको कभी भी ब्लैकमेल भी कर सकता है। जो आदमी उससे साल का $1 ट्रिलियन तक का माल ले रहा है, उस आदमी को भी वो ब्लैकमेल कर रहा है, रिटायरेटेड टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है, सब कर रहा है। तो जो छोटी कंट्रीज है जो चाइना से माल लेते हैं, उनको तो वो कभी भी ब्लैकमेल कर सकता है। तो आई थिंक ये जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है कंट्रीज में, आप स्पीच देखिए उनके लीडर्स की, तो मुझे लगता है कि दिस इज अ गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। एंड मुझे लग रहा है कि अपनी कंट्री में इतना बड़ा तूफान आएगा डिमांड का, बहुत जोर से डिमांड आएगी। आप देखिए कोविड के बाद भी 2-3 क्वार्टर माहौल, स्टॉक मार्केट रिकवर हो गया था, लेकिन एक्चुअल नंबर्स नहीं आए थे। एक्चुअल नंबर आने में टाइम लगता है, आप ऑर्डर करोगे, माल आएगा, ग्रोथ आएगा, पेमेंट होगा, इट इज अ प्रोसेस। मुझे लगता है वो प्रोसेस जो डिमांड का इंडिया से है, या जो कंपनीज इंडिया में आना चाहेगी, दैट विल गो अप मल्टीफोल्ड, एंड दिस टाइम इट विल बी अ मच मोर स्ट्रॉन्गर मूव देन कोविड। बिकॉज कोविड के बाद तो क्या था, वैक्सीन आने के बाद लोग रिलैक्स हो गए,
इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ट्रम्प अपनी जगह पे है और लोगों को पता है कि चाइना किस तरह से डील कर रहा है। तो मेरे को नहीं लगता वर्ल्ड में किसी की भी चाइना के साथ सहानुभूति है। हालांकि सहानुभूति ट्रम्प के साथ भी नहीं, क्योंकि लोगों के लॉसेस हो रहे हैं मार्केट में हर जगह। तो दे डोंट, नो वन वांट्स टू लूज मनी, बट एट द सेम टाइम I think that China is exports much more than earlier. So this is what I wanted to share my thought with you, how we see the market. अब ये अगर आप स्लाइड देखेंगे तो इसमें रेसिप्रोकल टैरिफ का हमने नंबर्स दिए हैं। तो इंडिया पे भी 26% लगा है, विच इज स्लाइटली हायर देन मोस्ट फेवर्ड नेशंस ऑफ अमेरिका। लाइक साउथ कोरिया उसका पार्टनर ही है बहुत सालों से, मलेशिया के साथ उसका बहुत बड़ा डेफिसिट नहीं है, जापान उसकी कॉलोनी है आप बोल सकते हैं, यूरोपियन यूनियन से उसका ट्रेड डेफिसिट का नंबर बहुत बड़ा नहीं है, यूके के साथ भी बहुत बड़ा नहीं है, मतलब इनफैक्ट पॉजिटिव है। तो अगर आप देखें जिसके साथ उसका रियल में ट्रेड डेफिसिट है उसमें सबसे लोएस्ट टैरिफ अपने ऊपर है, बाकी सब पे ज्यादा टैरिफ है। जिसके साथ उसका ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है उसके साथ टैरिफ, और इंडिया का तो टैरिफ इस नेगोशिएशन में ऐसे भी कम हो जाने वाला, बिकॉज अपना जो टैरिफ है उसमें एक मेजर चंक जो है वो एप्पल के फोन और ये सब है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके कारण वो डेफिसिट ज्यादा दिख रहा है। वो सब एडजस्ट हो जाएगा, मेरे को लगता है अगले 10-12 दिन में जब ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा यू विल हैव वेरी क्लियर पिक्चर एंड मच बेटर व्यू ऑफ, आई थिंक आवर टैरिफ विल बी वेरी मिनिस्क्यूल एंड हमको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस मिल जाएगा अगले 1 महीने में। दैट इज व्हाट माय सेंस इज। सो विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ये हमने थोड़ा सा एक अटेम्प्ट किया है कि हमारा जो यूएस में एक्सपोर्ट जाता है वो किस तरह से जाता है। तो फार्मा इंडस्ट्री में 53% प्रोडक्शन हमारा एक्सपोर्ट होता है एंड उसमें से 32% यूएस जाता है। एंड हमारा जो इम्पोर्ट है उसमें 6% ऑफ इम्पोर्ट्स आर फ्रॉम इंडिया, जो यूएस का टोटल है। तो आई थिंक फार्मा में जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है विच इज अराउंड 18 to 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन यूएस, तो मुझे नहीं लगता है कि वो फार्मा को टच करेंगे। प्लस इट इज ए लाइफ सेविंग थिंग, सो इसके साथ कोई बहुत ज्यादा खिलवाड़ नहीं होगा। सेकेंड इज टेक्सटाइल। नाउ टेक्सटाइल में एक है कि टेक्सटाइल में हमने बहुत सफर किया बिकॉज वियतनाम बांग्लादेश के साथ हम compete नहीं कर पाए थे। They don't follow the international standards and process. Moreover, their efficiencies are much higher. And for some or other reason, China was supporting them in a very big way. बहुत सारा डंपिंग भी हो रहा था। मुझे लगता है अगर स्ट्रांगली ये इम्प्लीमेंट होता है टेक्सटाइल में एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड टैरिफ्स, तो मुझे लगता है कि इस बार हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट को पता है टेक्सटाइल इज अ बिग एम्प्लॉयर, सो आई बिलीव दैट टेक्सटाइल वी विल सी बिग चेंज and this could be one sector which can do phenomenally well. Although ये छोटा सेक्टर है तो गवर्नमेंट इस पर ध्यान भी थोड़ा कम देती है, but I believe that we are in a much more advantageous position than others, and this is the time when, like what we did in auto and IT, maybe textile is the sector where we will do phenomenally well. So that is how we look at it. Second अपना जो है ऑटो कंपोनेंट जिसमें हम बहुत अच्छे हैं, 15% हमारा एक्सपोर्ट है ऑटो कंपोनेंट में। उसमें से 28% यानी कि ऑलमोस्ट 4.5% का इंडिया का प्रोडक्शन एक्चुअली गोज टू यूएसए। एंड जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका भी डेटा दिया हुआ है। एंड एक राइट में हमने टेबल भी शेयर किया है जिसमें आपको सारा डेटा दिखाया हुआ है और टैरिफ का भी दिखाया हुआ है। एंड सिमिलरली केमिकल 40% ऑफ द प्रोडक्शन हमारा एक्सपोर्ट होता है एंड उसमें से 13% यूएस जाता है। So I think that we have a very good relationship on both sides, import and export in all the segments. But obviously we are the net exporter to US, and because of that अपने को इन sectors पे थोड़ा tariff लग सकता है। But I still believe that finally this tariff war will end, where Trump will finally say that everyone who has whatever net surplus they should try to breach that in next 3 years to zero. तो अगर हमारा $50 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ, तो ट्रम्प फाइनली बोलेगा कि आप $50 बिलियन को अगले 3 साल में खत्म कर दो, एंड जैसे जैसे आप खत्म करोगे वैसे वैसे हम आपकी टैरिफ वापस लेते जाएंगे। आई थिंक दैट इज अ रैशनल डिसीजन बिकॉज इट सर्व्स द पर्पस ऑफ यूएस की उसका प्रॉब्लम क्या है, उसको ट्रेड डेफिसिट नहीं चाहिए। तो सबसे अच्छा, और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि चाइना का जो जितने लूपहोल चाइना आज यूज कर रहा है वो एक सोल्यूशन में खत्म हो जाते हैं। बिकॉज आपने क्या बोला, आपको कोई टैरिफ वैरिफ लगाने की जरूरत नहीं, आपको सीधा बोलना है मेरा ट्रेड डेफिसिट जीरो कर दो रेस्पेक्टिव कंट्री के साथ। तो फिर कोई भी चाइना का माल लाके बेचेगा भी नहीं, बिकॉज नहीं तो वो उसकी खुद की कंट्री को बहुत नुकसान होगा। तो आई थिंक दिस इज वेयर द फाइनल सेटलमेंट विल हैपन। दिस इज व्हाट माय सेंस इज, दिस लुक्स वेरी लॉजिकल टू मी।
एक सेक्टर है जिसको लोग डिफेंसिव बोल रहे थे जब फर्स्ट टाइम टैरिफ्स आए, आईटी। अगर आप देखेंगे हमारे पोर्टफोलियो में आईटी में सिर्फ एक स्टॉक है, ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी। उसके अलावा हमने कभी कोई स्टॉक पिछले 1 साल में नहीं लिया, बिकॉज मैं आई हैव डन आईटी फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। आज भी मैं आईटी के लिए जाता हूँ चैनल्स पे एज ए एक्सपर्ट। आई थिंक दैट आईटी में दो तरह की डिमांड होती है। एक 80% जो डिमांड है वो एन्यूटी है, यानी कि मेंटेनेंस डिमांड है। उसका कुछ नहीं हो सकता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता कभी भी, चाहे लीमैन हो चाहे डीमॉन हो, हमेशा रहता है। आप अपने सिस्टम्स बंद नहीं कर सकते। लेकिन जो बाकी 20% है वो डिस्क्रिशनरी है, मतलब कस्टमर को मन होगा तो खर्च करेगा, अपग्रेड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे है। आज जो भी टैरिफ लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, उसका एक सेटलमेंट हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में। आपको पता चलता है कि भाई इतना टैरिफ लगने वाला है, कुछ आप कस्टमर को पास ऑन करोगे, कुछ खुद लोगे, बट देयर विल फाइनली थिंग्स विल सेटल। बट यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आपकी डिमांड लिंक हो जाती है, उसका आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये जो ट्रम्प के टैरिफ का सब चल रहे हैं, अगले 2-3 साल वर्ल्ड की इकोनॉमी का ग्रोथ थोड़ा चैलेंज रहेगा ही। तो उस केस में जहां जिस इंडस्ट्री का 80-90% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है एंड मल्टीपल कंट्रीज को एक्सपोर्ट जा होता है, वहां मुझे लगता है कि वी विल डेफिनेटली बी इन अ प्रॉब्लम। सो हमने आईटी में इसलिए कुछ नहीं लिया है। एंड मेरा मानना है कि 10% और करेक्शन अगर हो जाता है यहाँ से, तो वी विल बी अराउंड 40-50-55% डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई ऑफ द इंडेक्स ऑफ आईटी। एंड वहां पे हमको डिविडेंड यील्ड जहां भी 6% हो रहा है, जो एचसीएल टेक में, टेक महिंद्रा में, इन्फोसिस में, इनमें होता है, वहां पे हम इवेल्युएट करेंगे। बट हम कोई भी महंगा स्टॉक लाइक परसिस्टेंट, कोफोर्ज ये नहीं खरीदेंगे, बिकॉज मेरा फर्म बिलीफ है कि ये मल्टीपल सस्टेनेबल नहीं है जो आज के दिन मिड कैप्स को मिल रहे हैं। लार्ज कैप में अगर मुझे एचसीएल टेक एंड इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा 12 से 16 के मल्टीपल पे मिलता है, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमको उतना डिविडेंड मिल जाता है। और मैंने देखा है कि आईटी 3 से 6 महीने तक डाउन रहता है, उसके बाद फिर से एक बार आता है जोर से, एंड वी विल बी अपॉर्चुनिस्टिक इन दिस स्पेस। IT sector honestly is not a structural story. It is always a dividend yield story. हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज किया आप लोगों के लिए कि हमारे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट या एक्सपोजर एक्सपोर्ट्स का कहाँ है। तो जाइडस लाइफ साइंस इज वन पिक विच हैज 57% एक्सपोर्ट्स टोटल, आउट ऑफ विच 44 इज टू यूएस एंड 13 टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अभी तक फार्मा एग्जेम्प्ट है टैरिफ से, ऑल्दो ट्रम्प कंटिन्यूसली बोल रहा है कि फार्मा को भी नहीं छोड़ूंगा, बट मैं आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ कि फार्मा में वो कुछ कर ही नहीं सकता, बिकॉज फार्मा में कोई कंपटीशन है ही नहीं वहाँ पे। एंड उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने से 4 से 5 गुना है। तो हो सकता है कोई भी तरह का एक अनाउंसमेंट आ सकता है नेगेटिव, बट आई डोंट थिंक इट कैन स्टे देयर फॉर लॉन्ग, वो वापस विड्रॉ हो जाएगा। उसी तरह बायोकॉन है, पीआई इंडस्ट्रीज है, एलटी फूड्स है जो बासमती चावल बनाता है, उसमें तो हमने देख ही लिया है कि बासमती राइस में जो कंपटीटरीज है वहां पे हमसे ज्यादा टैरिफ लगा, तो वी विल बी इन एडवांटेजियस पोजीशन। मेगमनी ऑर्गेनोकेम है, ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी जो आईटी कंपनी जो हमारा सिंगल एक्सपोजर है, कर्लोस्कर ऑयल इंजन है, लॉरस लैब्स है, ये सीडीएमओ कंपनी है, आरती इंडस्ट्री है, उषा मार्टिन है। यही हमारे जो टॉप 10 एक्सपोजर वाले हैं। आप देखेंगे इसमें एक बायोकॉन और जाइडस को छोड़ देते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क हम कहीं पे भी रन नहीं कर रहे हैं। बाकी सब कमोडिटीज पे ऑलरेडी ज्यादा टैरिफ दूसरे कंट्रीज पे लग चुका है। नाउ मैंने ये थोड़ा तो कवर किया है हाउ वी सी इंडियन मार्केट, बट मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है। अगर आप ये स्लाइड देखते हैं तो वर्ल्ड में एक रीजनेबल साइज टॉप 5 इकोनॉमी में ग्रोथ का नंबर अगर देखा जाए तो हमारे से ज्यादा कोई नहीं है। बांग्लादेश का ग्रोथ हो सकता है एक्सपेक्टेशन हमसे ज्यादा हो, बट देन दे आर वेरी स्मॉल। सिमिलरली वियतनाम अगेन वेरी स्मॉल। जो बड़ी इकोनॉमी है, यूएस, यूके, जापान, इंडिया, जर्मनी, चाइना, उसमें हमारी ग्रोथ हाईएस्ट है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है विच आई वांट टू शेयर विथ यू दैट अगर आप देखेंगे टैरिफ आने के पहले जो वर्ल्ड के जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट थे और आज जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसमें जो चेंज हुआ है, सबसे कम चेंज इंडिया में हुआ है। इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट 6.3 थी, गोल्डमैन सैक्स अभी 6.1 प्रोजेक्ट कर रहा है, यूबीएस 6 कर रहा है, यानी कि 20 से 30 बेसिस पॉइंट का फॉल गिन रहे हैं हम, यानी कि 4 से 5% का ही कट है एस्टिमेट्स में जीडीपी ग्रोथ में। बाकी सब कंट्रीज का मिनिमम 30% जीडीपी ग्रोथ के नंबर डाउनवर्ड रिवाइज हुए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले टैरिफ का वॉर चालू होने से पहले हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ का गैप था विद सिमिलर साइज और बिगर साइज इकोनॉमीज, वो ऑलरेडी इतना बड़ा था। एंड उसके अब जो टैरिफ का वॉर चालू होने के बाद तो वो गैप और ज्यादा ब्रॉड हो गया है। सो दिस इज अनदर रीजन ऑफ माई ऑप्टिमिज्म
कि अब तो इंडिया के अलावा कोई दूसरा इन्वेस्टेबल यूनिवर्स ही नहीं बचता है। ये पहले ही आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का गैप इतना बड़ा था और अब तो वो गैप और बढ़ गया है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक फोरकास्ट का जो कट है दैट इज द लोएस्ट। इसके साथ मैं एक और स्लाइड ऐड करूंगा, बैक में जाऊंगा आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार ये देख लेते हैं, उसके बाद उस पर जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हमेशा हमने देखा कि डॉलर जब भी वीक होता है तो इमर्जिंग मार्केट में फ्लो बहुत बढ़ जाता है, एंड डॉलर इज कंसिस्टेंटली फॉलोइंग, एंड आई थिंक थोड़े दिनों तक और वीकनेस रहेगी। तो जैसे जैसे वीकनेस रहेगी और अगर ये स्टेबल होता है अराउंड 100 या 95 से 100 के बीच में, तो इमर्जिंग मार्केट में बहुत फ्लो आएगा। बिकॉज लोग भागते इसलिए कि डॉलर स्ट्रांग होता है, तब पैसा निकाल के भागते हैं कि भाई हम यहाँ पे रह के भी कोई फायदा नहीं, हम जो भी कमाएंगे वो हमारा करेंसी डेप्रिसिएशन में उड़ जाएगा। पर जैसे ही डॉलर वीकन होना चालू होता है तो देन इमर्जिंग मार्केट बिकम वेरी अट्रैक्टिव। और फिर इमर्जिंग मार्केट में सबसे अच्छा इंडिया ही है। हमारा दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है कि हमारा सबसे बड़ा डिपेंडेंसी क्रूड पे है। आज भी हम 87% अपने कंट्री की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं, एंड वो कंटिन्यूसली गिर रहा है, एंड वो गिरते ही रहेगा। अगर ग्लोबल जीडीपी फोरकास्ट कम होंगे तो क्रूड ऊपर नहीं जा सकता, कमोडिटी ऊपर नहीं जा सकती, एक्सेप्ट फ्यू कमोडिटीज विच आर क्वाजी एसेट्स। तो हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज क्रूड जितना नीचे जाएगा उतना गवर्नमेंट के हाथ मजबूत होंगे, हमारे पास फॉरेन हमारा जो डेफिसिट्स है वो कम होते जाएंगे। दैट मनी कुड बी गिवन टू द पीपल इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट्स और थ्रू कैपेक्स, तो वो भी एक फायदा है। तीसरा, अगर आप देखेंगे जो IMD का फोरकास्ट आया है, हालांकि वो हमेशा सही नहीं होता है, बट दैट इज द बेस्ट ऑप्शन वी हैव। उसमें भी प्रोजेक्ट किया गया है कि इस बार रेनफॉल भी नॉर्मल होगी, विच इज अगेन वेरी बिग पॉजिटिव। तो उसके कारण आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा क्रूड की वजह से, कमोडिटी की वजह से, और नाउ विद एग्रीकल्चर फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो RBI के हाथ भी और खुले रहेंगे रेट कट करने में। 50 बिप्स कट कर चुका है, मेरे ख्याल से अनदर 75 to 100 बिप्स कट RBI करेगा। और RBI ने बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एंड प्रोएक्टिव होके काफी लिक्विडिटी भी इंजेक्ट की है, विच यू ऑल वुड बी अवेयर, एंड रेट ईजिंग साइकिल चल ही रहा है। नाउ अभी तक हमने बहुत पॉजिटिव बातें की। रिस्क क्या है? तो सबसे बड़ा रिस्क, अगर सबसे बड़ा वर्ल्ड का मार्केट है जो वहाँ पे माल जाता है वो US है। अगर US में शार्प रिसेशन आया या हार्ड लैंडिंग होती है तो हम भी नहीं बचेंगे। पर हमारा कौन सा सेक्टर इंपैक्ट होगा? सबसे बड़ा इंपैक्ट हमारी कंट्री में IT पे होने वाला है, क्योंकि हमारा सारा मोस्ट ऑफ द माल US में जाता है, और जो दूसरी कंट्रीज में भी जाता है वो भी US की कंपनीज की सब्सिडरी है उन कंट्रीज में। तो अगर अपना सबसे बड़ा एक्सपोर्ट एक्चुअल में रियल में US में ही होता है IT का, तो दैट इज अ बिग रिस्क। सेकेंडली, जब US में बियर मार्केट आता है तो हमने हमेशा देखा है पास्ट में, इंडिया कोई भी दुनिया में नहीं बच सकता। तो हम चाहते हैं कि US में रिसेशन ना आए, लेकिन US में एग्रेसिव ग्रोथ भी ना हो विच ब्रिंग्स इन्फ्लेशन। सो वी वांट US शुड बी स्टेबल। दैट इज द बेस्ट सिनेरियो फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि अगर US अच्छा करता है तो फिर डॉलर स्ट्रेंथन होती है, तो फिर इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लो होना चालू होता है। सेकेंड ये है हमारा जो अर्निंग्स का डिपेंडेंसीज है, वो भी हमने दिखाई हुई है। कितना हमारा BFSI है, कितना कमोडिटीज है, कितना ट्रेडेबल है, कितना IT है, नॉन ट्रेडेबल। तो अगर आप देखेंगे ट्रेडेबल्स में 30% है, एंड IT में 9 है, एंड नॉन ट्रेडेबल्स में 18 है। सो वी ऑल्सो हैव डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल। सबसे इंटरेस्टिंग टेबल जो है, जिसके लिए अगेन वी आर वेरी पॉजिटिव, इज द राइट हैंड साइड टेबल। अगर आप देखेंगे आज के दिन हमारा निफ्टी का जो लेवल है, और जो अगर आप ब्लूमबर्ग एस्टिमेट या कंसेंसस एस्टिमेट देखें, वो 1150 रुपये अर्निंग्स का है। हम 1100 रुपये बिल्ड कर रहे हैं, और अगर लॉन्ग टर्म एवरेज पी देखें तो 18 का देखते हैं, तो भी निफ्टी का 20,000 का लेवल, यानी कि 10% से ज्यादा डाउन साइड तो ऐसे भी नहीं है हमारे यहाँ, which is a big upside, but still I believe that big downside, but I think that is a very very bad scenario, worst case scenario, which I am not seeing today. हम सोविलो में क्या डिफरेंटली कर रहे हैं? तो हमारा जब से हमने ऑर्गेनाइजेशन चालू किया है, मैंने 12 साल सिर्फ रिसर्च किया है। अब मेरा सारा दिमाग सिर्फ रिसर्च में ही चलता है। अब मुझे ये लगता है कि हमको रिसर्च ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन ही करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। आज पिछले 5-6 साल में आपने देखा होगा 4-5 बहुत बड़े बड़े PMS आए हैं, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा AUM बिल्ड किया, सब कुछ किया, पर उनका मॉडल अलग है। उन लोगों का उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल और स्केल अप मॉडल को ज़्यादा एक्सेप्ट किया, विच इज़ अ वेरी गुड मॉडल फास्ट AUM ग्रोथ का। हम लोगों का जो मॉडल है, हम लोग रिसर्च ड्रिवन बनाना चाहते हैं, तो हमने सारा इन्वेस्टमेंट अपना जो है वो रिसर्च में किया है। आई थिंक एंड reasonably confident that we have one of the largest research team in the country,
compared to our assets under management. Definitely. मतलब we will be 3 to 4 times in terms of research to AUM versus the whole country, anyone in the country. तो उतना पैसा हम रिसर्च में डाल रहे हैं और मेरा मानना है रिसर्च बेस्ड ही होना चाहिए, क्योंकि हम रिसर्च से ही हमें पैसा कमाना, हमें कोई टेक्निकल या कोई स्पेकुलेटिव बेस्ड पैसा नहीं बनाना है. तो हमारा फोकस कंटिन्यूअसली रिसर्च बेस्ड बॉटम अप आइडियाज में ही है और उसी से हम अपना AUM बिल्ड करना चाहते हैं. हाउ वी आर लुकिंग, हमको लगता है BFSI में सबसे बड़ा तेजी आना चाहिए. उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि मुझे लगता है BFSI ने मैसिवली अंडर परफॉर्म किया लास्ट 2-3 साल. पहली बात. दूसरी बात, रेट ईजिंग साइकिल में हमेशा BFSI अच्छा करता है. तीसरी बात, जो हमारी NPA साइकिल है उसमें कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिख रहा. MFI और थोड़े MSME में थोड़ा स्ट्रेस है, विच कैन ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ ग्लोबल रिसेशन, बिकॉज एक्सपोर्ट्स में बहुत डिपेंडेंसी है. बट अगेन उसका परसेंटेज इन द कॉम्पोजिशन इज लेस, तो मुझे उतना डर नहीं लग रहा है. सेकेंडली, RBI बहुत फेवरेबल है. RBI इज वेरी अवेयर, दे आर पुशिंग लिक्विडिटी टाइम टू टाइम एंड दे आर ऑल्सो कीपिंग कंट्रोल ऑन एनी काइंड ऑफ स्लिपेज. आपने देखा इंडसइंड बैंक में क्या हुआ है. एंड तो मुझे लगता है कि दिस इज वन सेक्टर विच विल डू फिनोमिनली वेल. प्लस इट इज पॉजिटिव प्रॉक्सी टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. आपको इकोनॉमिक ग्रोथ खेलना है इनडायरेक्टली तो ऑलवेज PFSI इज बेस्ट, बिकॉज अगर इकोनॉमिक ग्रो होगी वर्किंग कैपिटल चाहिएगा. वर्किंग कैपिटल बैंक देता है, उसमें वो उसको नेट इंटरेस्ट इनकम होती है, तो दे विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी. सेकेंड इज EPC इंफ्रा. कंट्री को कैपेक्स करना ही पड़ेगा एंड आई थिंक गवर्नमेंट का कैपेक्स फोकस फिर से आने वाला है, बिकॉज अभी इलेक्शंस हो गए हैं ब्रॉडली. सो फिर से कैपेक्स चालू होगा, फिर से ग्रोथ आएगी. I think that government's focus on capex has already started to showing up. हमने लास्ट 1-2 महीने में जिस तरह के ऑर्डर अनाउंसमेंट सुने हैं in defense and other sectors, I believe that government is coming back into this. And third, consumption, where we are very positive because of the income tax relief and all. But हमारा सिर्फ एक है कि अगर आप हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड देखेंगे तो हम ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, तो हम कैपेक्स साइकिल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ थ्रू खेलते हैं एंड बैंकिंग एंड NBFC एक्सपोजर है. उसका रीजन ये है कि वाइल इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है एंड पॉपुलेशन ग्रोथ और ये पर कैपिटल इनकम ग्रो हो रहा, सब हो रहा है, पर जो भी प्योर कंजम्पशन स्टॉक है, FMCG स्टॉक्स है, वेदर नेशनल है, HUL है, ये सब 70-80 टाइम पे ट्रेड होते हैं. और अपनी कंट्री की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 1.5-2% है, ये इंडस्ट्री स्ट्रक्चरली 6-7% से ज्यादा ग्रो नहीं हो सकती. अब 6-7% ग्रोथ के लिए हम 80-70 का मल्टीपल देके लेंगे तो हमारे रिटर्न्स नहीं बनेंगे. तो मुझे लगता है हमारी कंट्री का जो बायसनेस है वो कैपेक्स की तरफ है. अगर कंट्री को डेवलप होना तो कैपेक्स की तरफ जाएगा, और अगर कैपेक्स की तरफ जाएगा तो हमको कैपेक्स थीम यानी कि मैन्युफैक्चरिंग चलना चाहिए. तो हम लोगों ने उसलिए अपने पोर्टफोलियो में भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोजर लिया हुआ है. सो ब्रॉडली ये है. आई थिंक वन क्वेश्चन विच एवरीवन विल हैव इन माइंड, and I know that I am not an expert on that, but बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि गोल्ड में क्या हो रहा है. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता है गोल्ड में क्या हो रहा है, बट आई कैन टेल यू फ्यू थिंग्स. जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो लोगों को हार्ड एसेट्स रखने का मन होता है और रखना चाहते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए. एंड बिकॉज इट इज अ स्केर्स कमोडिटी, डिमांड सप्लाई डिसाइड्स द प्राइस. आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. डिमांड सप्लाई के कारण ऐसा हो रहा है. मैं मेरे इन्वेस्टर्स को भी सबको बोलूंगा, हालांकि वी डोंट डील इन गोल्ड, बट सबके पास 5% पोर्टफोलियो का, 10% पोर्टफोलियो का गोल्ड होना चाहिए. इसमें कोई नेगेटिव नहीं है. बट अगेन डोंट जंप कि अभी ₹1,00,000 हो गया तो 1.5 लाख हो जाएगा. स्पेकुलेशन मत करिए, बिकॉज सी इट इज अ कमोडिटी फंड. एंड कल को उठ के थोड़ा सा टैरिफ पे क्लैरिटी आ गया, सर्टेनिटी आ गया, तो ये जो रिस्क प्रीमियम के कारण गोल्ड चल रहा है अभी, जो प्रीमियम उसको मिल रहा है 20-25%, वो वापस भी बहुत जल्दी रिवर्स हो सकता है. सो आई थिंक दैट वी शुड बी वेरी केयरफुल इन दैट. अदरवाइज गोल्ड एज ए पॉलिसी तो थोड़ा बहुत होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में. सारे एसेट क्लास होने चाहिए, थोड़ा रियल एस्टेट भी होना चाहिए, थोड़ा गोल्ड भी होना चाहिए, थोड़ा FD भी होना चाहिए, थोड़ा म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए और PMS भी होना चाहिए. सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. मैंने बहुत समय ले लिया है. वी विल ओपन अप फॉर क्वेश्चंस. नितेश जी, ओवर टू यू. Yes, please. Sandeep ji, we'll wait for a minute or so. We have received about 2-3 questions, but we will just one second.
Sandeep ji, Sandeep ji, we'll take the question answers. Yes. The first question is, do you feel the recent correction in Indian markets and global markets have already priced in all the fears of US recession risk and earnings downgrade possibilities? So I think I don't think that US market risks are factored in. Indian market risks are definitely factored in. US का इसलिए नहीं factored in है because जब तक इनका कोई कंक्लूजन नहीं होता चाइना के साथ तब तक it is very difficult to call what is the kind of risk that is built in. So I see downside risk in US markets. The second que- just one minute. The second question is, what are the key indicators or developments to watch over the next 3 to 6 months that could influence market direction? So there are 2-3 things. One, अपने को टैरिफ की बात किस तरह से नेगोशिएट होता है वो देखना पड़ेगा. उसमें अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है. दूसरा, बॉन्ड यील्ड, यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पे ध्यान रखना पड़ेगा. तीसरा, यूएसडी को ध्यान रखना पड़ेगा, डीएक्सवाई. सो बेसिकली अगर डॉलर फिर से स्ट्रेंथन होना चालू होता है क्विकली, या बॉन्ड यील्ड्स का क्या मूवमेंट होता है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज फाइनली बॉन्ड यील्ड्स डिसाइड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. बॉन्ड इज अ मच बिगर मार्केट देन इक्विटी. तो हमको उस पर ध्यान रखना पड़ेगा. इन्वेस्टमेंट इज अ 24/7 जॉब. सारे दिन नजर रखना पड़ेगा. 50 चीजें जो इम्पैक्ट होती है, कहीं कुछ वार हो गया, कहीं कुछ ऑयल सप्लाई पे प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी हो सकता है. आप देखिए पूरा मिडिल ईस्ट आज भी हॉट है. इसराइल का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, यूक्रेन रशिया का सॉल्व नहीं हुआ है. ईरान के साथ, ईरान में डिप्लॉयमेंट्स हो रहे हैं ईरान के बॉर्डर पे अमेरिका की तरफ से मिसाइल्स का. वी डोंट नो कब क्या फटेगा. बट I can tell you one thing very clearly. You are in the safest investment destination in the world since last 10 years, and I don't see change in that scenario at all. So I think वो है. एक क्वेश्चन. Sandeep हाँ, There's an interesting question. Can India adopt similar measures with China, which US, which is the Trump administration, is doing with China? In terms I of think- tariff. so मैं आपको एक प्रैक्टिकल आंसर देता हूँ इसका. बिकॉज वी वर्क विद सो मेनी इंडस्ट्रीज एंड हमारा जो अप्रोच है चाइना के लिए, दैट इज 10 times टफर देन ट्रम्प. सिर्फ फर्क इतना कि हम बोलते हैं, हम बोल नहीं रहे हैं. बाकी आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. पिछले 3 साल में किसी भी चाइना के टेक्नीशियन को या किसी भी बंदे को वीजा नहीं दिया इंडियन गवर्नमेंट ने. इट इज इम्पॉसिबल टू गेट. मैं ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज जानता हूँ जहाँ पे मशीन चाइना से आई है जो कि सस्ती है, पर इंस्टॉल जूम पे हुई है. 50-50 करोड़ की मशीन जूम पे इंस्टॉल करनी पड़ी है. एक आदमी को भी वीजा नहीं मिला आने का. सो आई थिंक इंडिया हैज डन टाइटन्ड अ लॉट, एंड दैट्स व्हाई लास्ट 2-3 साल में मिड कैप के मार्जिन इतने बड़े हैं. और आई थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग फिनोमिनल जॉब. हम कोई जेएनयू यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए नहीं बैठे हैं कि हमको पूरी दुनिया को ट्रम्प की तरह चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ेगा मैं इसको मार दूंगा, करूंगा. अपना काम करते रहो, दैट इज परफेक्ट. अभी आप देखिए रिसेंटली बांग्लादेश का भी जो लैंड है, लैंड से प्रोडक्ट ज्यादा वो स्टॉप कर दिया. इट इज अ बिग डैमेज टू देम. तो आपको वार करना है बस बिना बताए. सी यूएस कैन अफोर्ड टू स्पीक एंड डू एनीथिंग. दे आर वेरी बिग, वेरी स्ट्रांग. वी आर नॉट लाइक दैट. और मेरा ये मानना है कि व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग राइट नाउ इज वेरी गुड. गवर्नमेंट को कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में अभी भी डंपिंग हो रही है और दूसरे कंट्रीज के थ्रू हो रही है, वो स्टॉप करना चाहिए. उसके कारण हम लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा. तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अभी भी डंपिंग आ रही है, लेकिन वो घूम के आ रही है. तो गवर्नमेंट को भी ट्रम्प की तरह वो दूसरे कंट्रीज से भी जो डंपिंग हो रही है उसको स्टॉप करना चाहिए. There's another question, Sandeep ji. What major changes are you planning to make in your portfolio considering tariff structure? सर हमने अभी तक काफी चेंजेस कर दिए अगर आप देखेंगे, एंड इसीलिए जो हमारा रिकवरी हुआ है वो भी बहुत फास्ट हुआ है. स्टिल वी आर लिटिल, वी हैव टू कवर मोर ग्राउंड, बट हमने काफी चेंजेस कर लिए हैं. काफी अच्छे चेंजेस कर लिए हमने. बैंकिंग में एक्सपोजर लिया हुआ है, एनबीएफसी में लिया हुआ है, डोमेस्टिक है हमारा. पहले भी इंटरनेशनल एक्सपोजर ज्यादा था नहीं. एंड वी विल सी, मतलब अगर कुछ और आता है तो हम करेंगे. हमारी टीम एज आई सेड 20-25 लोग सिर्फ रिसर्च ही कर रहे हैं पूरे दिन.
तो हमको हर चीज इमीडिएट एक्शन लेते हैं, हम वेट नहीं करते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं. तो वी आर वेरी विजिलेंट एंड I also want to share that any client who wants to speak on any holding which he has any apprehension, he can always reach out to us. We have very, very detailed working on everything. You will be surprised. I can assure you that maybe not even the biggest fund have that kind of working what we have on any company which we hold. So that would be my answer. There's another question. Should we continue to invest in small caps? सर देखिए, ये कैप का डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए. मुझे लगता है ये जो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कैप है ना, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये कुछ बड़े फंड्स ने पहले से यूएस वगैरह में किया है और इंडिया में लोग फॉलो कर रहे हैं. इसका कोई रिलेवेंस नहीं है. आज जो लार्ज कैप है वो कल मिड कैप था और परसों स्मॉल कैप था. हमको अच्छी क्वालिटी कंपनी विद गुड मैनेजमेंट होना चाहिए. इसी देश में जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है वो दो भाई हैं. एक भाई को सबसे अच्छे बिजनेसेस मिले थे जब सेपरेट हुए थे, उन्होंने उसको जीरो कर दिया, और एक भाई को जिसको कमोडिटी बिजनेस मिला था ऑयल का, उसने उससे उसको सोना बना दिया है. तो इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट. कुछ लोग होते हैं जो केसर को कचड़ा बना देते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो कचड़े को केसर में कन्वर्ट कर देते हैं. हमको उन लोगों का कंपनियों में इन्वेस्ट करना जो कचड़े को केसर बना सकते हैं. तो मैं ये डिस्क्रिमिनेशन मानता ही नहीं हूँ, लार्ज, मिड एंड स्मॉल. ये डिस्क्रिमिनेशन उनके लिए है जिनको 1-2 लाख 5 लाख करोड़ मैनेज करना है. वो स्मॉल और मिड कैप में नहीं डाल सकते, उनको लार्ज कैप में ही डालना पड़ता है. और इसीलिए आके वो मिड कैप और स्मॉल कैप को वोलेटिलिटी के नाम पे बदनाम करते हैं. आई थिंक दिस इज वेरी रॉन्ग. कोई भी अगर मुझे आज दिखा दे कि जो कंपनी आज उनके लार्ज कैप है वो अगर कल मिड कैप थी कि नहीं या परसों स्मॉल कैप थी कि नहीं, सो दिस इज वेरी रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट इट. वी गो बाय द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, quality of the product, quality of the market. We don't go by the size of the company. Obviously, we have restrictions. We generally don't go below 1,000 crore market cap. Which measures by China against trade policies with US can hurt India particularly? See, it is very, very hard to say this because ये कैसे हो सकता, ये तभी हो सकता है जब चाइना कोई ऐसा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना बंद कर देता है यूएस को जिस प्रोडक्ट पे अपनी डिपेंडेंसी है. सो वेरी हार्ड, मतलब मुझे ऐसा कुछ ऑफ हैंड आता नहीं दिमाग में. इट इज अ वेरी सर्कुलर क्वेश्चन और इसका कोई आंसर है नहीं. मेरे ख्याल से नहीं है ऐसा कोई जहां पे चाइना यूएस के अगेंस्ट में क्या करता है उससे अपने पे इम्पैक्ट आएगा. इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देन दैट प्रोडक्ट विच चाइना इज गिविंग शुड बी क्रिटिकल प्रोडक्ट टू द इकोसिस्टम ऑफ यूएस and then we should be a supplier to that ecosystem. So वो बहुत मुश्किल है in my view. Sandeep, there is one specific question on risk management. How does Sovilo Investment Managers integrate macroeconomic risk such as trade war and recession fears into your risk management framework? तो हम लोग कंटिन्यूसली देखते हैं, उसीलिए जैसे मैंने कहा कि जब यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाला था उसके पहले ही हमारे पास जो आईटी स्टॉक्स थे हमने सब निकाल दिया. अगर आप देखेंगे हमारे आईटी स्टॉक्स का एग्जिट बहुत अच्छे प्राइस पे हुआ है, तो हमने पहले ही निकाल दिए थे. हमने फार्मा भी काफी सारा निकाल दिया था. तो हम वो एक्सपोजर्स जहाँ पे हमें लगता है कि ये रिस्क है आने वाला, तो वो हम पहले निकाल देते हैं. हमको पता है, आप जैसा कि हमने दिखाया अभी 10 कंपनियों का हमारे पास डेटा है, कितना एक्सपोर्ट कहाँ जा रहा है, वैसे हमारे पास सारी कंपनियों का होता है. ये सिर्फ पीपीटी में एक लिमिटेशंस होती है कितना हम डेटा दिखा सकते हैं. बाकी वी मैनेज वेरी वेरी एंड एवरीथिंग इज रिसर्च ड्रिवन मैनेजमेंट. कोई मतलब इसमें कोई एम्बिग्यूटी होती ही नहीं है. एंड वी टॉक टू द बेस्ट इकोनॉमिस्ट इन द कंट्री ऑलमोस्ट लाइक एवरी वीक. तो हम व्यूज लेते हैं एक्सपर्ट्स के जहां जरूरत पड़ती है हमको भी. Just 1 second, Sandeep. In your multi-cap portfolio, are you planning to increase large cap component from current 15% weight? We are not, again, we will not go by large or mid cap or small cap. We will go by good quality, good companies which are good and which don't have risk of tariff. हमारा वो फिलोसफी है. हम साइज के हिसाब से नहीं देखते हैं. There's another question. Can we diversify? We mean Sovilo Investment Managers, our portfolio by investing in US and China related stocks, which is offshore exposure. नॉट राइट नाउ. मेरे को नहीं लगता. मैं तो बहुत बुलिश हूँ इंडिया पे, तो मुझे 6%, 6.5% की इकोनॉमिक ग्रोथ छोड़ के 2%, 3% ग्रोथ पे क्यों जाना है.
I'll take the last question. If any specific question is left out, we probably will discuss one-on-one with that investor. The last question is, given historical data indicating that a US bear market significantly affects global market, which is also covered in our slide, what defensive strategies or asset allocations are you currently employing? So see, we are not taking exposure to any global stocks जहाँ पे global dependencies है. फिर से रिपीट करूंगा, आईटी के अलावा कहीं मुझे ज्यादा इकोनॉमिक रिसेशन का रिस्क नहीं लगता है, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन का, तो हम वो सब नहीं ले रहे हैं. हमारा कुछ इंडिया में कंपनीज है जो इंजीनियरिंग कंपनीज है, ऑटो कंपनीज है, जिनका कुछ एक्सपोर्ट एक्सपोजर होता है, उसमें भी हमने लिमिटेड एक्सपोजर ले रखा है. एंड वी आर मॉनिटरिंग, वी आर इन टच विद मैनेजमेंट. Just for information of everyone, we speak to management of every company we have exposure. We may be small in size, but trust me, because of our relationship of last 20 years, we have reached to every management also. तो वो सब हम रेगुलरली बात करते हैं, टच में रहते हैं, सब करके देख के करते हैं. और हमारे सब डोमेस्टिक फोकस ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग फोकस ज्यादा है, जहां मुझे कॉन्फिडेंस है कि इंडिया बहुत अच्छा करेगा. पावर में इंडिया बहुत अच्छा करेगा, हमारा पावर का बहुत अच्छा एक्सपोजर है. मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा करेगा, वाटर ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा करेगा, बैंकिंग बहुत अच्छा करेगा. ये सारे हमारे अच्छे एक्सपोजर है. इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत कम है. आप देखिए जैसे जैसे मार्केट रिकवर होता है, हमारा आउट परफॉर्मेंस बहुत स्पीड में वापस आएगा. एक दो क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं लोगों ने पूछे एंड वी मे नॉट बी हैव बीन एबल टू आंसर बट व्हिच आर इंटरेस्टिंग. वन इज a question whether shall we continue to invest in small segment. I think yes, you must continue to invest in mid cap and small cap segment, but remember that you don't end up having any company where there is hanky panky. Unfortunately, lot of small companies which have newly got listed in last 3-4 years, there has been lot of issues. So be very careful what you are buying. Number 2, जो मैं ये ब्रैग नहीं करना चाहता, हम अपने कोई तारीफ करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अदानी में जब एक्सीडेंट हुआ था, जब हिडनबर्ग का हुआ था, तो इंडिया में शायद ही कोई फंड होगी जिसके पास अदानी के स्टॉक्स नहीं थे. बट आप हमारा पोर्टफोलियो जाके देखिए, अदानी पोर्ट के अलावा और अंबुजा सीमेंट के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था, और वो भी बहुत छोटा वेट था. तो अभी जो इसके बाद हर रोज कुछ ना कुछ होता है. आप देखिए कोई भी फियास्को में, कोई भी स्कैम वाले स्टॉक में हम इन्वॉल्व नहीं है, हमारे पास होता ही नहीं है. तो हम थोड़ा रिटर्न कम कमा लेंगे, लेकिन हम अपना पोर्टफोलियो खराब नहीं करेंगे. हरिओम पाइप थी जिसने सिर्फ अपना पॉलिसी चेंज किया कि उसको सोलर करना है, उसमें भी हमने कंपनी का वेटेज कम कर दिया. वी आर सो कॉन्शियस. तो हमें ये नहीं चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसा हो जहाँ पे हमको सर्टेनिटी ना हो. तो हम सर्टेनिटी को पहला प्रेफरेंस देते हैं, विच इटसेल्फ टेक केयर ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट. बट बाय नेचर आवर पोर्टफोलियो has made a small cap exposure where liquidity is less, and because liquidity is less, the movements are weird and wide. तो कभी-कभी आपको ऐसा होगा कि आपको रिटर्न्स कम दिखेंगे या ज्यादा जोर से गिर जाएंगे, but I can assure you that doesn't mean that we are holding some risky companies. Companies are not risky, they are less liquid. Because of that, the volatility is higher. Sandeep ji, there is one question probably which is very, very apt for the current discussion that we are having it. So I will take that question. There is an inverse relationship between USA and China relationship and India's economic growth. So if tensions related to trade war between USA and China eases, what will be the change in India's growth view then? What impact can be seen in such a scenario? See, अब यूएस एंड चाइना का ट्रेड वार तो अभी भी वर्बल ही है. आज भी आप देखेंगे लास्ट 2 साल में चाइना के ट्रेड सरप्लस बढ़ते ही जा रहे हैं यूएस के साथ. तो एक्चुअल में तो कुछ कम हुआ नहीं है, तो हमने उसमें भी इतना अच्छा किया है. अभी तो हम एक्सपेक्ट करें कि वो ट्रेड सरप्लस थोड़ा कम होगा, थोड़ा प्रेशर चाइना पे आएगा, तो हम बेनिफिशियरी होंगे. हमने तो वो देखा ही नहीं अभी तक और बिल्ड ही नहीं किया कुछ भी. तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई डिसएडवांटेज होगा. एंड आई कैन एश्योर यू कि रिलेशन इतने अच्छे नहीं होंगे दोनों के कि हमें नुकसान हो जाए. दैट कैन नॉट हैपन. वो इकोनॉमिक्स में बैठता ही नहीं है. Okay, just last question. What are the chances of recession setting in USA? There is very high chance, 45, 50, 60, 70% maybe. But see, recession कैसा है वो important है. recession तो होना है, उसका हार्ड लैंडिंग है, सॉफ्ट लैंडिंग है, वो इम्पोर्टेंट है. मेरे हिसाब से यूएस बहुत स्ट्रांग होना पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, बट दे शुड नॉट बी वीक ऑल्सो. तो उनका माइल्ड रिसेशन, माइल्ड लो ग्रोथ इज फाइन. क्योंकि वहां पे जब भी स्ट्रांग ग्रोथ आता है ना, तो उनका जो डॉलर बहुत जोर से अप्रिशिएट होता है, तो फिर अपने बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इमर्जिंग मार्केट्स में. आई थिंक एक क्वेश्चन सिल्वर पे भी है. ऑल्दो आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट आई थिंक सिल्वर हैज लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल यूज. सो and gold has run a lot, so silver may not be a bad investment, but this is not advice. I have no expertise to answer on silver and gold, but
I think, silver is also will be seen as safe in this volatile environment. I think so. We have covered broadly majority of the questions. If anything has been left out, we'll probably cover one-on-one basis. This brings us to the end of the today's webinar. We sincerely appreciate your participation and we hope you found the session insightful. Wishing you a wonderful day ahead. Thanks a lot to everyone. Thank you. Thank you, everyone. Thank you.